Hello students, today we are going to talk about William Wordsworth's sonnet, The World is Too Much with Us. It's a famous sonnet written from the pen of Wordsworth. Wordsworth was in fact a poet of nature. His passion for nature was fixed in his blood, like that of silkworm to the mulberry leaf. जैसे एक रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्ते के बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह से वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर के बिना नहीं रह सकता था. इनफैक्ट ही वाज अ रोमांटिक पोएट. We have four major romantic poets in English literature: John Keats, William Wordsworth, Shelley, Coleridge. So these romantic poets, the major quality is that they give more importance to feelings, expression. They escape from the realities of life. So all of these romantic poets, they have different ways to escape the realities. Wordsworth has just love for nature. Keats is always in search of finding the world which is permanent. Then we have Shelley. Shelley wishes for the golden future. पास्ट में वो उनकी उन बातों की बात करता है जो वो पाना चाहता था और उसे मिला नहीं. फ्यूचर में वो सबकी इच्छा रखता है जो मिल नहीं सकता. प्रेजेंट से वो सेटिस्फाइड है. सो एंड दैट इज व्हाई देयर इज इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग एंड मेलनकली. Spontaneity of expression is there in Keats' poetry, Shelley's poetry. He is considered as a supreme singing god in literature. Then we have Coleridge. Coleridge talk about the supernatural elements. He presents supernatural in a natural manner. He is an excellent storyteller. He goes on narrating stories. He is busy in talking about the supernatural things. So each has his own way to escape the realities. So anyway, this is a small sonnet. This is a sonnet. This is a poem of 14 lines. And this sonnet shows Wordsworth's love for nature. The world is too much with us. What does it mean? It means we have become extremely materialistic. World मतलब मटीरियलिज्म. मटीरियलिज्म मतलब भौतिक चीजें, सुख सुविधाएं. वी आर ऑल द टाइम बिजी इन होर्डिंग मोर एंड मोर थिंग्स. कंफर्ट्स को जुटाने में लगे रहते हैं, सुख सुविधाओं को जुटाने में लगे रहते हैं. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. इट मीन्स कि वी आर टू मच कंसर्न्ड विद द मटीरियल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. Late and soon. Late and soon मतलब every time. Getting and spending. Getting and spending what? Money. So all the time we are busy in getting money and spending. Late and soon. Late and soon मतलब every time we are busy in getting money and then spending. So we waste our powers. It means we are, according to Wordsworth, we are wasting our capabilities. We are wasting our time. We are wasting our potentialities because we are all the time busy in getting money, spending money, collecting materialistic things. We are all the time busy in having more and more comforts, more and more luxuries, more and more money. So the world, this materialism, we are so much concerned with that. So Wordsworth is pained to see that the people in the modern setup, they are busy with the material things. All the time they are busy in getting money, spending. So according to him, they are wasting their capabilities, their potentialities. Little we see in nature that is ours. Little we see in nature that is ours. कि people मतलब we people, we do not see any sense of belongingness. Ours मतलब
We don't have any attachment. We don't have any sense of belongingness to nature. We don't have any taste for the beauties of nature, for the various phenomena of our nature. We have given our hearts away. That means we are totally committed. Given our hearts away means कि we are totally committed to the material things. A sordid boon. Sordid मतलब मीन. ये तो बहुत घटिया सा सौदा है. बून मतलब बार्गेन. A sordid boon. ये तो एक बहुत घटिया सा सौदा है कि we are have given everything. We have given ourselves. हमने अपने अस्तित्व को, अपने पूरे समय को हमने किस चीज पे लगा रखा है? मटेरियल चीजों. हमने सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करना, उनको जुटाना, उसी में ही अपना पूरा समय, पूरी क्षमताएं लगा रखी. Then this thing has been shown again. This thing has been expressed in the next following these two beautiful lines. The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. लिटरल लैंग्वेज में और लिटरेरी लैंग्वेज में यही डिफरेंस होता है कि लिटरल लैंग्वेज जो है वो प्लेन होती है, उसमें कोई भावनाएं नहीं होती. जैसे आप न्यूज़पेपर में लैंग्वेज देखते हो, जैसे आप साइंस की किसी टॉपिक पे कुछ पढ़ रहे होते हो तो वहाँ लिटरल लैंग्वेज होती है. लेकिन लिटरेचर में लिटरेरी राइटर जो है उसको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कन्वे करना होता है, उसको अच्छे से एक्सप्रेस करना होता है. पोइट को, राइटर को, एक लिटरेरी राइटर को यूं होता है कि कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी इशू जिसके बारे में वो बता रहा है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो वो जितना अच्छा उसको लगा है उतना ही अच्छा वो पढ़ने वाले को भी लगना चाहिए. तो दैट्स व्हाई ही यूजेस सो मेनी आर्टिस्टिक डिवाइसेस just as personification, symbolism, similes, metaphors. Now see this line. This sea has been personified. Similarly, moon has also been personified. The sea that bears her bosom to the moon. It's a very beautiful line. अगर हम इसको लिटरल सेंस में देखें तो सिर्फ यही है कि चंद्रमा की किरणें जो हैं वो समुद्र पर पड़ रही है ना, ये इसका प्लेन मीनिंग हुआ. लेकिन वी हैव हियर द लिटरेचर, वी आर स्टडीइंग इट फ्रॉम द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू. सो द पॉइंट इज दैट सी को यहाँ पर क्या दिखाया है? फेमिनिन जेंडर दिखाया है, और मून को मैस्कुलिन जेंडर दिखाया है. तो उस एंगल से अगर हम देखें तो सी क्या है? सी एक लेडी है, और मून क्या है? मून एक मेल मेंबर है ना. तो इस लाइन की जो कोनोटेशन आ रही है, जो भाव आ रहा है, वो इस तरह से आ रहा है कि भाई द बिलवेड, सी कौन हो गया? बिलवेड हो गया. किसका? मून का. क्योंकि यहाँ पर सी के बाद इसने आगे लिखा बेयर्स हर बूजम. हर किसके लिए यूज हुआ? सी के लिए. तो सी क्या हुआ? फीमेल हुआ, है ना. तो सी एक लेडी है, हम ऐसे देखेंगे, है ना. द सी दैट बेयर्स हर बूजम. एज सच भी आप जानते हो कि सी और मून का आपस में रिलेशन है कि मून की जो रेज बीम्स हैं, मून की जो बीम्स हैं, उनकी वजह से सी में एप एंड टाइड होता है. ज्वार भाटा आने के लिए जो चंद्रमा की किरणें हैं वो प्रभावित करती हैं. एनीवे, इस लाइन का पोएटिक मीनिंग ये है कि द सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून. जस्ट एज वी गेट द इंप्रेशन कि लवर एंड द बिलवेड, they are in a playful mood, है ना. they are in a lovable mood. इस लाइन का जो भाव है वो ये है ना. the winds that will be howling at all hours. winds को फिर से पर्सोनिफाई कर दिया. howling क्या हो गया? howling का मतलब शोर मचाती रहती है. winds मतलब समझो कोई गर्ल समझ लो, लेडीज समझ लो. सो यहाँ पर विंड को भी पर्सोनिफाई किया. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि आप एक इनएनिमेट चीज को ऐसे दिखा रहे हो जैसे वो कोई लिविंग बीइंग है ना. तो विंड्स जो है, जो सारा दिन शोर मचाती रहती हैं, आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. तो वो हवाएं जो दिन भर शोर मचाती रहती हैं, अब वो इकट्ठी हुई हैं
जैसे कि सोए हुए फूल होते हैं। लाइक यहाँ पर सिमिली हो गई, दो अलग अलग डिसिमिलर चीजों का जब कंपैरिजन करते हो और उनमें कोई ना कोई पॉइंट सिमिलैरिटी का होता है तो उसको आप सिमिली कहते हो, क्योंकि उसमें लाइक या एज वर्ड राइटर ने, पोइट ने डाला हुआ है। तो अब यहाँ पर बात क्या हुई कि द विंड्स दैट आर मेकिंग नॉइज थ्रू आउट द डे एंड आर नाउ अप गैदर्ड लाइक स्लीपिंग फ्लावर। So in these 2-3 lines, the poet is just giving a beautiful picture of the natural phenomena, है ना, beautiful scenes and sights, beautiful scene दिखा रहा है आपको। The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers। तो अगर हम इसकी हिंदी करेंगे इन तीनों लाइंस की तो उसकी कोई सेंस नहीं निकलती है ना। ये तो पोइट्री पढ़ने के लिए क्या है कि आपको अपने लेवल पे भी इमेजिन करना पड़ेगा, है ना। यू विल हैव टू अप्रिशिएट दोज आर्टिस्टिक डिवाइसेस विच द पोएट हैज यूज्ड, कि सी को पर्सोनिफाई किया, है ना, मून को पर्सोनिफाई किया, फिर विंड को पर्सोनिफाई किया, फिर विंड जो विंड्स जो है पूरा दिन they are howling, they are shouting, they are moving here and there in a naughty manner, और अब they are gathered like sleeping flowers। तो sleeping flowers उसने सिमली यूज की, है ना। जैसे एक और टू नाइटिंगेल पोएम है जॉन कीट्स की, उसमें वो यूज करता है द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन अटेंडेड बाय स्टेरी फेस। वहां पर उसने मून को क्वीन बना दिया, कह रहा है कि मून जो है वो अपनी थ्रोन पे है और उसके आसपास उसकी फेरीज है, और उसकी फेरीज कौन है, स्टार्स। तो ये सबका अलग अलग ढंग है अपनी बात को सुंदर तरीके से कहने का। सो हियर इन दिस 3 लाइंस द पोएट इज जस्ट showing us beautiful scene of nature. The sea that bears her bosom to the moon, and the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. So the poet says that for such beautiful scenes and sights, we are out of tune. We are out of tune. Out of tune मतलब हमारी कोई सेटिंग नहीं है। सेटिंग मतलब we don't have any taste for such beautiful scenes and sights of nature. It moves us not. We are least affected, है ना, by such natural phenomena, by such beautiful scenes, कि हम, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते प्रकृति की इन खूबसूरत दृश्यों से। सो द पोएट इज पेन टू सी ऑल दिस। पोएट बहुत ज्यादा दुखी है ये सब देख के। ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पैगन सक्कल्ड इन अ क्रीड आउट वन। तो वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वॉन्ट्स टू बी अ पैगन। पैगन क्या होता है, पैगन एक हीथन को बोलते हैं, वन हु डजंट बिलीव इन एनी ऑफ द चीफ रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के रिलीजन्स को बिलोंग नहीं करता, वो मानता नहीं, जहाँ पे प्रकृति को ही सब कुछ मानता है जो व्यक्ति। जैसे एक बीच में आया था ना, हिस्ट्री हम पढ़ते हैं कि भी हवा भी एक देवता है, अग्नि भी एक देवता है, तो उस तरह से तो पोएट कह रहा है कि मैं तो उस सेज को बिलोंग कर जाना चाह रहा हूँ, मैं तो एक पैगन बनना चाह रहा हूँ, पैगन वाले पीरियड में जाना चाह रहा हूँ। क्रीड आउट वन मतलब जो एक एंशिएंट रिलीजन का पार्ट है ना, तो मैं तो पैगन बनना चाह रहा हूँ, सो दैट आई माइट स्टैंड ऑन दिस प्लेजेंट लीव। अगर मैं पैगन वाले पीरियड में चला जाऊंगा तो मैं क्या होगा, मैं इस खूबसूरत मीडो पे खड़ा हो सकूंगा। ली मतलब मीडो, मीडो मतलब चरागाह। अब मीडो प्लेजेंट नहीं है, पोएट को वहां पे खड़ा होके अच्छा लग रहा है तो वो अपने आप से प्लेजेंट हो गया, तो उसको लगता है कि मैं यहाँ इस चरागाह पे खड़ा होऊंगा और मुझे इधर उधर देखूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। ग्लिम्पसेस मतलब झलक, बहुत सुंदर वर्ड है ये, है ना, कि तो मैं उस चरागाह पे खड़ा होके हर तरफ देखूंगा
तो मुझे ऐसी झलक दिखाई देगी, ऐसे दृश्य दिखाई की झलक दिखाई देगी जिससे मैं अपने आप को कम अकेला महसूस करूंगा। फॉरलॉन मतलब कम अकेला फील करूंगा। Have sights of Proteus rising from the sea, और hear old Triton blow his wreathed horn। Proteus कौन है? Proteus जो है, he was a deity, he was a prophetic man of the sea, है ना। प्रोटियस भी एक डेटी है, मतलब हम देवता है सी का। हम ऐसा कहा जाता है कि वो भविष्य के बारे में बता देते थे कि समुद्र में कब ज्वार भाटा आएगा, कब कैसा होगा। तो उसको लगता है कि भी हाँ ऐसे सीन्स वो देख पाएगा। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो इज रीड हॉर्न, और ट्राइटन भी एक सी डेटी है ना। ट्राइटन जो है ही वो अपने उस कॉन्च शेल को बजाते थे ताकि समुद्र में जब बहुत लहरें ऊंची उठ रही हैं तो वो नीचे हो जाए। So these lines, last two lines where he gives allusion to Proteus and Triton, they are just trying to show कि nature is very beautiful, है ना। जैसे आप पहले बचपन में वो कहानियां पढ़ते थे ना कि वो परी, जल परी आ गई, वो लक्कड़हारे और परी की कहानी थी जिसमें वो परी जो है समुद्र में से निकल के आई और उसने उसको लकड़ी वाला कुल्हाड़ा की जगह गोल्ड वाला दिया और फिर वो अमीर हो गया, है ना। So the poem just shows Wordsworth's passion for nature and his love for nature. It was so simple poem, and let's see the rhyme scheme. See the last sound of the first line, soon, and fourth line, boom. Soon or boom, they have the same sound. So here we put small a, है ना। Then powers, hours, these two sounds are different, लेकिन powers और hours की sound same है, और ये अलग sound है तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, b, small b। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, small b। तो ये क्या बना, a b b a। Then again we see moon, moon, this one, this moon, and then tune, tune, moon, same sound. Then hours, flowers, BB. Powers, hours, hours, flowers. They have same sound. So we'll put BB, BB everywhere. है ना? Tune, moon, boon, and then soon. They have the same sound. So there we will put A, small a. So the rhyme scheme will be A, B, A, B, B, A. Then A, B, B, A. Then again let's see the next. I would rather be a pagan suckled in a creed out one. B and Lee, they have the same sound. है ना। So but the sound is different, so we will put another name. अब sound अलग है तो हम यहाँ पर नाम भी नया रखेंगे, C रख दिया हमने। अब out one और forlorn की सेम साउंड है लेकिन साउंड डिफरेंट है, ऊपर वाली रिपीट नहीं हुई है, तो हम यहाँ पर क्या नाम रखेंगे, D, और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, D। तो ये क्या बना, C D C D। देन अगेन C एंड horn, horn किससे मैच किया, out one से, forlorn से। So that was all about this poem. I hope you must have understood this poem, and the notes are available in the description box mentioned in the link.